Yes. So here I'm sharing my screen. I hope my screen is visible to both of you. Chiransh, Yes, ma'am. Yash? Yes. Okay. So, Chiransh, would you like to summarize what we talked about in the last lesson up till now? मैम एक बॉय है मैम, एक लड़के की बात होती है, इसको मैम फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मैम, और एक दिन जब उसको लगता है कि नहीं हमें को ये अच्छे से करना चाहिए, तब वो लेटर आ जाता है हेड से कि अब ये फ्रेंच हम फ्रांस में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रूशिया और वो वॉर होती है जिसमें वो हार जाते हैं. Very good. So the background of the story goes that we are talking about French language. The last lesson is a story about a little boy named Franz. Franz belonged to the district of Alsace. Now, when he was there in the district of Alsace, he was trying to learn French language. जैसे हम लोगों ने English language सीखी है, हिंदी भी हमें सीखनी पड़ती है. So he had been learning French language and he was very reluctant. जैसे हम लोग कई बार reluctant हो जाते हैं, हिंदी तो है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे. सबको बोल सुन के तो हमें कुछ कुछ समझ आ ही जाता है ना. So he was saying this of the same opinion, and one day when he was walking from his house to his school, he saw a lot of hustle bustle in the way near the town hall. जैसे हमें हमारे यहाँ पे है ना, हरिनगर में घंटा घर है. Yes, so there was a town hall where all the bulletin board was kept, and all the sad or bad news or the announcements were made on that bulletin board. Now, when he is visiting there, he's been attracted by the marching soldiers, by the environment, by the people around. But he continues to walk, otherwise, he would get late for his school. Now, when he reaches a school, he finds the environment very strange. Reason being that there is no noise at all. जब आप लोग स्कूल में आते हो, जब तक असेंबली नहीं होती, जब तक आप स्कूल जाते हो, जब तक असेंबली नहीं होती, जब तक there is a lot of hustle bustle, children are roaming around in the corridor. So there was no hustle bustle at all. No crowd, no commotion, nothing at all. All was as silent as it generally happens on a Sunday morning, that nobody is there in the school. So it was appearing that no one was there. It was complete, utter silence. Now, when he enters the school, enters the class, he's almost dreaded. Why? Because he is late. अब वो लेट है तो एज यूजुअल वही टीचर का रिएक्शन होगा कि टीचर ने पनिश करना है. अब टीचर ने तो पनिश नहीं किया. टीचर इज एम हैमल, हु इज देयर फ्रेंच टीचर. एंड फ्रांस is really horrified today because he has not learned his lesson on participles. Yes, he has not learned his lesson on participles. So now he is really worried कि अगर सर ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा. Right? So at this point, when he is really concerned, he is not being scolded, he is very surprised. कि मुझे तो आज डांट ही नहीं पड़ी. The teacher asked me politely that France, you are already late, take your seat. Now when he is moving away from the teacher, he notices his costume, his dress, that he is wearing a frilled shirt and that formal kind of attire that he generally wears, all those things on the day of inspection or on the day of prize giving ceremony. So he is really surprised कि आज कुछ तो खास है. संडे की तरह तो स्कूल फील हो रहा था कि जैसे कोई शोर ही नहीं है स्कूल में. सर इतने ड्रेस्ड अप है. और थर्ड थिंग, अक्षत, वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द लास्ट लेसन. यहाँ पे अभी कुछ नहीं है स्क्रीन पे अभी. राइट? अक्षत, आप थे लास्ट क्लास में, द क्लास दैट वी हैड ऑन वेडनेसडे? Yes, from last class. हाँ, तो बस वो उसी का कंटिन्यूएशन है. यश हैज जॉइंड विद अस टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ बिट ऑफ समरी so that he is able to relate what we are going through. Yes, हर्षित, आप थे वेडनेसडे की क्लास में? नो मैम. चलो, आपको भी मुझे लगता है कुछ समझ आ रहा होगा जो हम द लास्ट लेसन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आर यू एबल टू रिलेट? नो मैम. No. Okay. So for those of you who are not able to relate, यश, आपको अब तक कुछ समझ आया जो हम स्टोरी डिस्कस की हमने? थोड़ा थोड़ा थोड़ा. तो फॉर दैट सेक आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन. अब यहाँ सीन 1 वो है जो हम लोग अभी बात कर चुके. सो फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल. ही वाज supposed to prepare his lesson on participles.
He was afraid that his teacher is very strict, or so he would be punished. He was tempted to skip the school because he saw all these things around him. The Prussian soldiers were drilling. The day was warm and bright. Open fields, lushing with the crops, a sawmill which was working. So he resisted all those temptations and hurried off to school. Moving further, he sees the town hall. Large bulletin board is there. The crowd has gathered around, and he wants to see, but because of the crowd, he is not able to. All the bad news, the announcements come through that bulletin board. I hope you all are comfortable with English, और मैं हिंदी में switch over करूं. यश, हर्षित, I am comfortable. हर्षित ठीक है? Yes, Harshit? ma'am. अक्षत? Yes, ma'am. Okay. So the lost battles, the drafts, the order of the commanding officer all come to the general public through this bulletin board. Now France is wondering what could be the matter. क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आज फिर इतनी भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के पास, ऐसा क्या है जो शेयर करने की नीड है. बट ही इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, तो उसे अब जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, तो वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देता. नाउ व्हेन ही इज रशिंग, तो जो ब्लैक स्मिथ है वॉटकर स्टॉप्स हिम. ही इज वर्किंग विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था. अप्रेंटिस इज समबडी हु इज गेटिंग इंटर्नशिप. जब आप जैसे इंटर्नशिप कहते हो ना, व्हेन यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस, यू आर न्यू टू द वर्क, देन यू आर अप्रेंटिस. So he is calling on the apprentice, and then he calls on France. Don't go so fast, you'll get to your school. Now indirectly he is indicating, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. क्यों? क्योंकि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है already. It is already too late. He did not say it in his words, but when we'll conclude the chapter, we'll identify कि Watker has already read that bulletin board information, and he knows today is the last day of learning French language. So that's why he's saying कितनी जल्दी क्यों है तुम्हें, तुम तो आराम से चले जाना, स्कूल कौन सा भागा जा रहा है. Now when he reaches school, he observes a complete silence, as it happens on Sunday mornings. No usual commotion means confusion, hustle bustle. No wrapping of teacher's ruler. Nobody is there to wrap the ruler. आप लोगों को याद होगा जब आप लोग स्कूल में जाते थे, अभी 2 साल पहले की बात है, जब 1 साल पहले, तो टीचर कई बार चुप कराने के लिए, बड़ी क्लासेस में तो आई एम नॉट श्योर, बट व्हेन यू वर देयर वेरी यंग, then the teachers used to snap their ruler on the table, yes, so that you people are getting quiet. Yes, so there were no regular bustle, no opening and closing of desk. Mohit, unmute yourself. Mohit. Has Mohit joined? Mohit, have you joined? Yes, Mohit, आज आप लेट क्यों बेटा जी? 4:11 हो गए. मैम मुझे लिंक नहीं मिला था. अच्छा, अब एक काम करना है आप लोग, अभी मुझे याद दिलाना, मैं चैट बॉक्स में दोबारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगी, और यश, you can copy the contact number in the chat box. All of you please note it down, and you are going to send your details to me, your contact number, so that I can save it, and I'm going to make a broadcast group for the reminder message for the next class, so that there is no confusion कि next time मुझे कोई ये ना कहे मैम मुझे लिंक नहीं मिला था और मुझे टाइम नहीं पता था या ऐसा कुछ, राइट. सो मोहित, आप थोड़ा सा चैप्टर को हम वहां पे पढ़ रहे हैं जहाँ स्कूल सीन स्टार्ट हो गया. Yes, so the school scene has started, and there is silence as it happens on Sundays कि जब कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं होता. Apart from this, there is no usual confusion, nobody is snapping or wrapping the ruler on the table, no regular hustle bustle, no opening and closing of desk. So everything seems to be so silent. Now M. Hamill's changed behavior. Now he notices when he enters the class. Yes, France expected that he would be entering the class in a commotion. बच्चे शोर मचा रहे होंगे, टीचर उनको डांट रहा होगा और तब वो चुपचाप एंटर कर जाएगा. But he observed कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. Children were already sitting at their places and everything was so calm and quiet. M. Hamill was roaming with his terrible way that he generally used to have. And
terrible ruler, France now asked for permission again. As he had expected कि generally जैसे उसे डांट पड़ती थी लेट आने पे या किसी को भी डांट पड़ती थी, he was expecting कि आज उसे डांट पड़ने वाली है, but उसे डांट नहीं पड़ी and he was surprised. Unexpectedly, M. Hamel said to him kindly that little Franz, go to your place. We were going to begin the lesson without you. You would have missed the lesson. So now he takes the place. Now M. Hamel is noticed by Franz. Franz notice करता है कि यार teacher तो कुछ different dress up है. Beautiful green coat, frilled shirt, little black silk cap. It was all embroidered. Means this kind of attire used to be there. कि जब स्कूल में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इंस्पेक्शन है, समथिंग स्पेशल इज देयर. Yes, on that particular day this kind of attire used to be there. So he's very surprised कि आज सर ऐसे क्यों ड्रेस अप है. He has not read the bulletin board, so he doesn't know what order has come. Now, apart from this, so two things we have already talked about. First is the unusual environment in the school. Everything is so silent. Secondly, the attire of the teacher. The teacher is so differently dressed up. Third, the students in the class. So back benches that generally used to remain vacant are today occupied by people. People are sitting on them. And who all these people are there? The people from the district of Alsace, the old ones, the young ones, all the village people are sitting on the last benches. And they were all sitting quietly like students. Yes, the old Hauser means he was one of the old person in the village. He was sitting in his three-cornered hat. आप लोगों ने देखा होगा वो hat जो ऐसे triangle shape में बनी होती. Yes, it is having three corners. So he was wearing a three-cornered hat, and the former mayor, the earlier mayor of the district, the former postmaster, and many other. Chiranshu raised hand. आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार दोबारा समझा दो अच्छा, प्लीज. I'll explain. So old Hauser was there. He was sitting there wearing his three-cornered hat. Bacha, just a minute. So old Hauser was there, and a former mayor was also sitting as a student. Postmaster was sitting, and many others like this were sitting. Yes. Now they were all looking sad. बहुत उदास थे सब लोग. They had brought their old primers. अब primers क्या होते हैं आप लोगों को प्राइमरी बुक्स याद है? A for apple, B for ball. जो आप लेटर लर्न करते थे उस लेटर के साथ उसकी पिक्चर बनी होती थी. Yes, they are called primers. प्राइमरी बुक्स विद विच द चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज. अब विलेज के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें तो मौका ही नहीं मिला ना अब तक पढ़ने का. तो वो लोग लैंग्वेज को कैसे सीख रहे थे? वो लोग भी एम हैमल की क्लास में आते थे कभी कभी, या एम हैमल उनके पास आते थे ताकि वो भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सके. जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है, हमने हिंदी लैंग्वेज को सीखा है, अ से अनार, आ से आम, वैसे ही वो लोग भी वहां पर जाते थे ताकि वो अपनी उस प्राइमरी बुक से रिलेट करके कुछ सीख पाए. Yes. Okay. So after students in the class, M. Hamel announced something, and he is making the same announcement as was mentioned on the board of town hall, bulletin board of town hall. So in his grave means serious, and gentle means polite, that concerned tone, he announced that all my students, आज का lesson जो है वो आपका last lesson है. Why? क्योंकि जब Prussia, this chapter is based on the context of war between France and Prussia. Yes. So when the war between France and Prussia, जब ये war हुआ, Prussia का जो ruler था वो था Bismarck. By chance in that war France was defeated. France हार गया और Prussia का रूल हुआ. अब Prussia ने सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी पे हार्म किया, that अगर इन लोगों के पास अपनी लैंग्वेज नहीं होगी तो ये कभी भी हमें अपोज नहीं कर पाएंगे. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडियन स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो आप लोगों को याद होगा हाउ गांधी जी एंड ऑल दीज फ्रीडम फाइटर्स यूनाइटेड ऑल द इंडियंस. नहीं तो ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल. यस, दे वर डिवाइडिंग द पीपल ऑन वेरियस इश्यूज एंड दे वर मूविंग अहेड विद देयर रूलिंग. क्यों? क्योंकि लोगों को ये होता था हमें पार मिल जाए, हमें इंग्लिश आती है तो हमें अच्छी से अच्छी पार मिल जाए, वी आर एबल टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, चाहे हमें ब्रिटिशर्स का गुलाम बन के रहना पड़े. The freedom fighters made everyone realize that what is the importance of our own freedom. So here also Prussia
is playing with the ideology of the people. कि अगर इन लोगों के पास अपनी लैंग्वेज नहीं होगी तो जर्मन लैंग्वेज में कुछ भी सीख लें, हमारी लैंग्वेज में पढ़ के हमें कैसे अपोज कर देंगे. Ultimately, they were trying to make the people of Alsace and Lorraine their long-term slave. आज हम भी slave हैं. कोई बताएगा कैसे? आप चारों में से, चारों पांचों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, can anyone tell me? Raise your hand. We are still slaves. Why or how? Mohit. Ma'am, the slaves of English language. Ma'am. Yes, we are That still we- slaves of English language. अगर मैंने आप लोगों से, शायद जो लोग पहले थे क्लास में, मैंने उनसे पूछा था कि हम लोग कब इंग्लिश बोलते. जनरली क्लास में तो बोलना मजबूरी है, जब टीचर पढ़ा रही है और हमें बाउंड है हम कि हमें इंग्लिश में ही बोलना है, तब हम बोलते हैं. और हम कब बोलते हैं? फ्रेंड्स के साथ हम बोलते हैं इंग्लिश. एनीवन एल्स? मोहित ने तो हाथ खड़ा किया था. मोहित हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड. एनीवन एल्स? चिरांश, यश, हर्षित, अक्षत, डू वी स्पीक इंग्लिश आउट ऑफ आवर चॉइस? Yes, anyone of you? Mohit? In front of our, ma'am, in front of our friends. Yes, in front of our friends. और purpose क्या होता है? Ma'am, to predict ourselves that we are more intelligent than them. Yes, we and are we know more it. intelligent than you. Show off जहाँ करना होता है, friends के सामने ये दिखाना होता है कि हमें तुमसे ज्यादा आता है. Then we switch on to English. Yes, so that is why we are slave of English language. कभी हमने सोचा अगर हम प्योर हिंदी में बोलें या संस्कृत में बोले, हमने संस्कृत भी हमारी वो है, फाउंडेशन लैंग्वेज है, कभी हमारे दिमाग में हम संस्कृत को सीखें और संस्कृत बोले? नहीं, इंग्लिश सीखना जरूरी है, संस्कृत को कौन पूछता है? यस, हिंदी हमें प्योर बोलनी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं पता ढंग से. अगर एक प्योर हिंदी का वर्ड आता है तो हम उसमें भी कंफ्यूज होते हैं किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू रिलेट दैट वे बेटर. So we are still slaves of English language because it was imposed on us. The same manner, यहाँ पे भी वही हो रहा है that the people of Alsace and Lorraine are having that imposition. उन पे अब थोपी जा रही है लैंग्वेज कि अब क्या होगा. आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसके बाद कल से जर्मन टीचर आएगा. जर्मन टीचर विल टीच जर्मन लैंग्वेज. और जो फ्रेंच टीचर हैं, इस चांस को अवॉइड करने के लिए कि आपकी जो फ्रेंच टीचर है वो आपको किसी भी तरह कोई भी लैंग्वेज ना सिखा पाए या फ्रेंच के बारे में कोई कम्युनिकेशन लोगों के पास ना हो, इसलिए फ्रेंच टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया. They have been sent to another district. So they have been deported from the place and new German teacher will be taking their place. So coming to the same point, he is making the same announcement कि आज का लेसन जो है आपके लिए लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा. क्यों? क्योंकि बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आ चुका है. और ये सारे जो जर्मनी और प्रशिया, ये सारे एक ही पार्टी के थे. तो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. सो द न्यू टीचर विल कम टुमारो एंड टुडे इज द लास्ट फ्रेंच क्लास. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्योंकि आज की लास्ट क्लास है कि आप लोग बहुत बहुत अटेंटिव रहें, बहुत ध्यान से सुने. Now his words were thunderclap to France. अब आप में से कोई बताएगा thunderclap क्यों थे उसके words? Why were his words like a thunderclap to France? Raise your hands. Interpret करो, कोई बात नहीं, गलत भी हो सकते हैं हम, no problem. मोहित, सिर्फ मोहित, this is not fair. मैं कोई वो पनिश थोड़ी करने वाली हूँ, एटलीस्ट गैस तो करो. यश, would you like to make a guess? No, ma'am. Why no? ट्राई तो करो. थंडरक्लैप का मीनिंग क्या हुआ? अ नॉइजी क्लैप. चलो मोहित आप बताओ. Ma'am, this was thunderclap for the ma'am France because he now will won't be able to ma'am learn the French language anymore, ma'am. Yes, थंडरक्लैप वाज मींस अ शॉकिंग क्लैप. जैसे आप कभी हुआ है, हम लोगों ने भी वो शैतानी शायद की होगी, जब आपके सिबलिंग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो सिस्टर हो या ब्रदर, और बिल्कुल घुसे हुए हैं मैथ्स की नोटबुक में प्रैक्टिस करने में, पढ़ाकू टाइप्स जो होते हैं बच्चे,
और आप उसके कान के पास जाके अगर जोर से ताली बजा दो या उसको जोर से तंग कर दो तो क्या रिएक्शन होता है? द पर्सन इज शॉक्ड, होता है, दे शाउट एट यू. So the same was the reaction of France. These words were like a thunder clap, means the clapping just like a thunderstorm. Thunderstorm के time जब lightning होती है, we get shocked for some time कि कितनी तेज noise है. Yes, with that outcome. So the same is the thing with France when he comes to know that today is the last French lesson. And why? Because now he's realizing कि जिन बुक्स को वो एक बर्डन मानता था, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. अब भी हो रही है हर्षित? No, अब ठीक है हर्षित? इज इट फाइन नाउ? यश, चिरांश, आवाज ठीक आ रही है अब मेरी? Yes, Fine. ओके. तो अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि जिन ग्रामर बुक्स को जो अब तक इतनी वेटेड लगती थी, हैवी लगती थी, और जो हिस्ट्री थी सेंट्स की, मतलब ऑल दोज थिंग दैट वर रिलेटेड टू फ्रेंच लैंग्वेज, जो चीजें अब तक बर्डनसम लगती थी, नाउ दे वर सीमिंग टू बी ओल्ड फ्रेंड्स. अब आप लोगों का सबका अभी जब टाइम आएगा, प्रे टू गॉड कि आप लोग 12th में हो, जब तक आप लोगों की फेयरवेल का टाइम आए, यू आर एबल टू मीट योर फ्रेंड्स. यस, जब फ्रेंड्स से फेयरवेल का टाइम आता है, वी बिकम सैड कि वी विल नॉट बी टुगेदर नाउ. यस, ये सैडनेस की फीलिंग होगी या हम खुश होने वाले, अच्छा है इस फ्रेंड से छुटकारा मिला. यस यश, अच्छा छुटकारा मिल गया. हाँ, फ्रेंड से छुटकारा मिल गया. यश को तो फ्रेंड से छुटकारा चाहिए. अब यहाँ पे वो उन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जिनसे वो छुटकारा नहीं चाहता. अब तक वो चाहता था कि ये सब ना हो मेरे आसपास. ही वॉज फीलिंग दैट इट वॉज ऑल बर्डनसम, बट नाउ ही वॉज फीलिंग दैट दे आर ओल्ड फ्रेंड्स दैट ही वॉन्ट्स टू कीप विद हिम फॉर एवर. एम हैमल जो टीचर था, ही वॉज ऑल्सो हैविंग एन आइडिया कि वो उन लोगों से बाद में नहीं मिलेगा. यस, ही फ्रांस न्यू कि वो अब एम हैमल से कभी नहीं मिल पाएगा. एम हैमल वुड बी गोइंग अवे, तो ही वॉज मिसिंग हिज रूलर. कोई ऐसी टीचर याद है जो सबसे स्ट्रिक्ट थी और अब तक याद हो, एंड यू मिस हाउ शी यूज्ड टू टीच और ही यूज्ड टू टीच? आप पांचों में से किसी को कोई टीचर ऐसी याद हो जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी और फिर भी आप उसे अब रिमेम्बर करते दैट दैट टीचर वाज एक्सट्रीमली गुड? है कोई मेमोरी में? चिरांश, यश, हर्षित, अक्षत, मोहित? No, ma'am. कोई भी नहीं है? स्ट्रिक्ट वाले तो हमें वैसे भी पसंद नहीं होते, बट स्टिल कोई टीचर हो जो डांटती भी बहुत थी और पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी? मैम बोल के आप समझ नहीं आ रहा. teacher. यस हर्षित. हर्षित, चलो, आई रिमेम्बर माई टीचर कि जो एक टीचर थी और वो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत डांटती थी, बट स्टिल when she left after 2 years, we missed her a lot. So he's realizing that he's going to miss his teacher a lot because he will not be there with them. Yes, now the people are also realizing the same thing. लोगों को भी अब फील हो रहा है. Yes, एम हैमल, उसे तो पता है कि उसकी डेस्टिनी क्या है और ये आज का लास्ट लेसन है, इसीलिए उसने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं टू मेक इट सो स्पेशल फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल द अदर पीपल प्रेजेंट इन द विलेज. और बाकी जो विलेजर्स हैं वो भी इसीलिए आए हैं बिकॉज दे वांट टू पे अ ट्रिब्यूट, अ होमेज टू द सर्विस डन बाय एम हैमल इन द लास्ट 40 years. Yes, and they are also at the same time sorry कि उन्होंने एम हैमल की बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया. They were not able to realize that language is the key to their prison. हम कौन से prison की बात कर रहे हैं यहाँ पे? The prison of slavery. That if they know their mother tongue, then only they can come out of slavery. Now, अब सब कुछ ये फ्रांस के दिमाग में चल रहा है, इतने में फ्रांस की टर्न आ जाती है कि जिस बात से वो डर रहा होता है कि पार्टिसिपल्स पे आज मुझसे ना पूछा जाए, उससे अब पार्टिसिपल्स के बारे में ही पूछ लिया जाता है. और फ्रांस को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देगा, चाहे तुक्का ही मारे, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है वो फंबल कर जाता है, अटक जाता है. ही मिक्सेस अप द वर्ड्स एंड ही फील्स रिग्रेटफुल. उसे दुख होता है कि मैं सर के सामने नहीं बोल पाया और मैं अब उनसे उनकी आंखों में
आंखें डालकर नहीं देख पाऊंगा, उनसे नजरें नहीं मिला सकता, बिकॉज आई एम सो सॉरी दैट आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वे. नाउ पीपल ऑफ Alsace are also not able to look into the eyes of M. Hamel. They are not able to say anything. Why? Because they also delayed their learning. कल कर लेंगे, कौन सा आज भागा जा रहा है ना? हम सारे भी यही सोचते हैं ना, अभी तो शुरू हुआ है 12th क्लास, अभी तो शुरू हुई है, कोई बात नहीं 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, अभी तो लॉकडाउन हुआ है, कोई नहीं, टीचर कौन सा पढ़ा रही है इतनी स्पीड से, कर ही लेंगे हम भी. So in the same manner he is also thinking. And these villagers were actually those parents who preferred to keep their children in the field. पढ़ने के लिए कोई भेजने में इंटरेस्टेड नहीं होता था. सब लोग क्या सोचते थे, बच्चे फील्ड पे जाके काम करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे. इवन द टीचर ब्लेम्स हिमसेल्फ कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं था. क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्लासेस देने में कभी भी सीरियसनेस नहीं दिखाई. मैं आधा टाइम या तो बच्चों को पानी देने के लिए भेज देता था कि प्लांट्स में पानी दे के आओ मेरे घर पे, या फिर मैं जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोगों की क्लास को डिसमिस कर देता था. तो ही इज ऑल्सो रिग्रेटिंग कि अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लैंग्वेज नहीं सीख पाए तो उतना ही ब्लेम मुझ पे भी आता है कि मैंने कभी भी तुम्हें लैंग्वेज सिखाने में वो सीरियसनेस नहीं दिखाई. And he praises French language, that it is the most beautiful, most logical language and people need to protect it. अब protect कैसे करेंगे जब पढ़ना ही नहीं आता, जब याद ही नहीं रहेगा कुछ भी, तो उसके बारे में बताएंगे क्या अपने आने वाली जनरेशन को? लैंग्वेज तो खत्म हो जाएगी ना. यस, लैंग्वेज तो खत्म हो जाएगी ना. और जब लोग लैंग्वेज में स्लेव होते हैं, मतलब जैसे हम आज इंग्लिश के स्लेव हैं, जब लोग लैंग्वेज को लेके स्लेव हो जाते हैं तब उनको कौन फ्री कर सकता है? उनकी मदर टंग, उनकी अपनी लैंग्वेज. And up till the time then that people have their language with them, then only they can think that they have the key to their prison, that उनके पास अपने जेल की, अपने ताले की चाबी है, अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज पता है. यस, बहुत डेप्थ वाला थॉट है. मुझे लगता है हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग इंग्लिश के लिए इतने आज स्लेव हैं कि जब हमें स्टेटस दिखाना होता है, हमें फ्रेंड्स के सामने चौड़ा होना होता है ना कि हमें सब कुछ आता है, उस टाइम पे हम इंग्लिश जरूर बोलते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदी बोल के वो चौड़े नहीं हो सकते. एंड नाउ व्हेन M. Hamel is saying all this, France is full of patience. France is full of admiration, happiness for M. Hamel. Yes, because M. Hamel को उसने कभी भी इतने ध्यान से सुना ही नहीं कि उसे टॉपिक समझ आ जाता. और अब जब आज लास्ट लेसन है और वो सुन रहा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने फ्रेंच लेसन्स को इतने ध्यान से सुना होता तो शायद उसे कितना कुछ समझ आ जाता, बिकॉज M. Hamel used to teach with a lot of patience. Yes, और M. Hamel was desiring कि उसके पास जितनी नॉलेज है वो सारी आज की क्लास में वो सारे विलेजर्स को, सारे स्टूडेंट्स को दे दे, बिकॉज दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ देयर्स टुगेदर. सो अब इसके बाद ये सब हो गया, M. Hamel ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, फ्रांस की बोलने की टर्न आ गई. इसके बाद एक हैंड राइटिंग सेशन होता, जैसे आपको कर्सिव राइटिंग सिखाते थे, याद है कर्सिव राइटिंग सिखाते थे, तो ऐसे ही वो कर्सिव राइटिंग का सेशन है. अब यहाँ पे वो फ्रेंच की राइटिंग सीख रहे हैं बच्चे, सब लोग फ्रेंच को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में प्रैक्टिस सेशन है. तो अब उसके लिए M. Hamel has intentionally brought the new notebooks so that he can create memories for himself, a new beginning. Yes, and on the top of that notebook, on beautiful round handwriting was written France, Alsace, France, Alsace. Yes, and जो बुक पे इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मैनर में लिखा होता कि ऐसा लग रहा था कि जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं ना फ्रांस के और एल्सेस के, वो हर एक के डेस्क पे रख दिए गए हैं. नाउ एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग इन दोज नोटबुक्स. विलेजर्स को भी दे दी, स्टूडेंट्स को भी दे दी, और सब लोग चुपचाप उसमें लिखने की कोशिश कर रहे थे. और जो एक आवाज जो सुनाई दे रही थी उस टाइम, इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड ओनली द स्क्रैचिंग ऑफ पेन, people writing over the paper was visible. Now, अब फ्रांस जब वो हैंडराइटिंग का कर रहा है काम, तो वो करते करते अब ये सोच रहा है क्या ये जर्मन्स जो हैं ह्यूमन बींग्स पे तो जोर चला लेंगे, दैट दे हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज.
अब इतने में पिजन्स की कूइंग स्टार्ट हो जाती है, पिजन स्टार्ट मेकिंग देयर नॉइज एंड देन ही वंडर्स क्या पिजन्स को भी जर्मन बोलने पे मजबूर कर पाएंगे? वुड दे मेक द पिजन्स लर्न देयर ओन लैंग्वेज? And now France is realizing that how pitiful has been the state of French people, that they are going to change their own language. Birds were luckier that they are not forced to change their language. उनकी cooing को कोई change नहीं कर सकता. Human beings में ये है कि आप अगर मैं जीत गई war में तो मेरी language चलेगी, जो मैंने कहा है वो right है, बाकी सब कुछ wrong है. So it is talking about human predicament. Predicament means something that is turning out to be an unfavorable aspect. Yes, man has turned inhuman. War में हम सब inhuman, हमने inhumane behavior देखा है सबका. That how people become cruel. The only purpose is to control, rule, take over one another. चाहे इसके लिए मेरी कंट्री के बहुत लोग मर जाएं, ऑपोजिशन कंट्री के इतने लोग मर जाएं, पर वॉर में मुझे जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक. और ऐसी स्टेट में बर्ड्स जो हैं वो बेटर हैं. क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे से ऐसा कोई मतलब नहीं है, वो अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं और अपने अपने हिसाब से सब एक दूसरे को जीने का हक देते हैं. तो बर्ड्स आर बेटर. सो इट इज अ सैटारिकल कमेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ की हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द सुपीरियर मोस्ट रेस क्रिएटेड बाय गॉड. आर वी रियली? जब हमारा माइंड हमारा जब जिस हिसाब से चलता है कि वॉर हुआ, लड़ाई हुई, तो मुझे ही जीतना है, चाहे सामने वाले का पैर टूट जाए, लाइफ चली जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक मैंने ही जीतना है. बर्ड्स और एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता. जबकि हम कहते हैं कि उनका जो लाइफ है वो हमसे, दे आर नॉट एज सुपीरियर, एज नॉलेजेबल एज वी आर. सो नाउ एम हैमल, अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो एम हैमल इज फीलिंग सॉरी फॉर हिज कंट्री, that now they are not going to be free. Now he has to leave the school that he served for 40 years. The plants that he nourished in the school premises are not going to be there with him after this day. So M. Hamel is really upset. And M. Hamel now is ready to leave. So before the class ends, yes, there is a noise ऑफ मूविंग आउट, क्योंकि एम हैमल का जो घर है वो कहाँ पे है? वो स्कूल के ऊपर ही है. स्कूल के ऊपर ही जो रूम है उसमें उसका घर है. और एंड ही इज नोटिसिंग द साउंड ऑफ हिज सिस्टर मूविंग इन द रूम एंड शी इज पैकिंग द थिंग्स, पैकिंग ट्रंक्स, बिकॉज दे हैव टू लीव द कंट्री. व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? आप में से कोई गेस करेगा? व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? आई नेवर saw him look so tall. हम शायद धूप में खड़ा हुआ है और कुछ कर नहीं पा रहा, पेल हो गया उसका. तो नहीं, यहाँ पे टॉलनेस का मीनिंग है उसकी ग्रेटनेस से, कि अब पेल तो है ही बट डल तो हो ही गया, बट ही वाज सो टॉल, सो ग्रेट. People were not able to realize that how good he was as a teacher. And now they are regretting कि उन्होंने सही टाइम पे कुछ भी रियलाइज नहीं किया. चिरांश, you want to add on? मैम ये स्टेटमेंट एम हैमल ने बोली थी या फ्रांस ने बोली थी? ये फ्रांस का जो माइंड है ना उसमें चल रहा है. ओके मैम. ओके, नाउ अब लास्ट में एम हैमल इज सो इमोशनल that he is not able to look at anyone. Yes, and when he's trying to speak, something has choked and he's not able to speak. Oh, I'm sorry. Something has stopped him from speaking. Yes, so now he is writing on the board. So before ending his lesson, he writes Vive la France. Vive la France. Vive la France. And as large as possible. Vive la France means long live France. He is not only a good teacher, but an extreme patriot as well. Who is really sad. Yes, Chiransh. हमें विवा ला फ्रांस किसने बोला? एम हैमल ने? बोला नहीं है बेटा, बोला नहीं है. फ्रांस इज नरेटिंग इट कि एम हैमल ने बोर्ड पे ये लिखा अपना लास्ट. इससे पहले वो कुछ कह पाता लास्ट में. ही वाज सो इमोशनल दैट ही गॉट चोक्ड कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली.
He was so emotional at that time. जो last moment चल रहा था lesson का, period का. At that time, he turns to the board and in as large possible, उतने large letters में उसने ये लिखा Viva la France before he left the class कि मैं जा रहा हूँ. But France long time तक जिंदा रही. फ्रांस की लैंग्वेज, फ्रांस के लोग, they are not going to means end up कि जर्मनी के लोग आ जाएंगे और जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे तो फ्रांस खत्म हो जाएगा. ही इज होपफुल कि फ्रेंच लैंग्वेज किसी न किसी फॉर्म में जरूर कंटिन्यू कर पाएगी. एंड पीपल आर रियली सैड कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ध्यान से कभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और आज उनसे वो राइट भी खत्म होने वाला है, उनसे छिनने वाला है ये राइट भी कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को सीख पाए. राइट? सो दीज आर सम ऑफ द terms that are there on your screen now. So let us talk about them, that why they are important. Yes, mother tongue हम सबको पता है. Yes, mother tongue is, हमारी टंग क्या है? मदर टंग हिंदी. Yes, the The tongue own that language that we speak. yes, Chiransh. I'm the own language that we speak, Yes. or the language of the country. Yes, the language which we are born with, which we learn from our birth. It is our mother language. Yes, and how important it is, we all know. हम इंग्लिश में बात ओकेजन्स पे करते हैं कभी कभी, जब फ्रेंड्स को दिखाना है हमें कितना आता है, हमें जब अपना एटीट्यूड दिखाना है, हम तब इंग्लिश को यूज करते हैं. अदरवाइज अगर मैं भी अपनी बात करूं, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी प्रेफरेंस भी हिंदी में होती है. लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तब मुझे इंग्लिश में पढ़ाना है, बिकॉज आई एम अ लैंग्वेज टीचर. And if I am not going to speak that language that I'm teaching, then it won't be making an impact and my students will lose the opportunity to learn. तो मदर टंग तो हमें समझ आया. अब ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या है? कोई भी जो लैंग्वेज को मेजॉरिटी देना और एक को माइनॉरिटी. ओके, इनडायरेक्टली यू आर राइट. एनीबडी एल्स? यश, हर्षित, अक्षत, मोहित, ट्राई करो. Linguistic chauvinism means when you think your language is superior. मेरी लैंग्वेज सबसे ऊपर है, बाकी लैंग्वेजेस बेकार है. That is linguistic chauvinism. अब प्रशिया ने क्या किया? प्रशिया ने ह्यूमनिस्टिक साइड नहीं देखी कि फ्रांस के लोगों को अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ने देंगे तो उनका कितना नुकसान है कि उन्हें अपनी मदर टंग नहीं पता. बच्चा जर्मनी में रोएगा, जर्मन में रोएगा. अगर उसे अपनी मदर से कुछ कहना है, उसकी मदर कोई ढंग से टंग नहीं आती लिखनी, तो वो आगे क्या पढ़ाएगी उस बच्चे को? फादर को ही नहीं पता तो वो क्या करेंगे? जर्मन से जर्मन लैंग्वेज सीख के जर्मन बन जाएंगे. दे डिड नॉट हैव दिस ह्यूमनिस्टिक साइड. दे थॉट जर्मन इज मोर सुपीरियर, जर्मन इज मोर फ्रूटफुल देन फ्रेंच, तो जर्मन ही इम्पोज होगी, अब जर्मन ही पढ़ेंगे सब. सो दिस इज द बेसिक थीम अराउंड विच द होल चैप्टर इज रिवॉल्विंग. And what kind of pain it is inflicting on the people who are suffering, who are having this imposition laid down on them, is being reflected by the first person narrative, and that first person narrative is of a small child named France. I hope मुझे लगता है हमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव को इतना बात करने की, जब अब फ्रांस ही बोल रहा है और फ्रांस अपने बारे में ही बता रहा है अपना पूरा दिन सुबह से लेके क्लास तक का. He is using I. So this is first person narrative. So I've answered the second question also, why first person technique is used. Yes, to make an impact, to make it more relatable, that how it feels when the thing that you love the most, the thing that you own, you are suddenly told that you are not the owner of this particular thing. हम ये इमेजिन कर सकते हैं, आज हम जिस घर में आ रहते हैं, कोई भी और आके खड़ा हो जाए, नहीं चाहिए घर तो मेरा है, आप दूसरे में जाके रहो. Can we imagine that? The same is the state. No, of ma'am. Why France, a little boy is narrator, and why not M. Hamel? अब ये आप लोगों में से बताओ, मैंने already hint दिया. Why France is taken as the narrator, not M. Hamel? Harshit, Chiransh, wait, beta. Harshit,
अच्छा, बहुत डिस्टर्बेंस है। अक्षत, अक्षत, यस। अब किसने? मोहित, यस मोहित। Ma'am, because France is the child and he is learning the language. So, ma'am, Yes, to show the importance of the language, that's why they have taken very good France. Mohit, because we are trying to show. Yes Chiransh, you also say your viewpoint. मैम कि इसने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यूज करे और इसने अपना पूरा दिन एक्सप्लेन करे कि किस तरह क्या फीलिंग आती है जब अपने मतलब खुद से ही वो लैंग्वेज छीन ली जाती है जो Yes, मदर। एम हैमल को तो लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, ही इज द टीचर। तो एम हैमल का व्यू पॉइंट शायद उतना इम्प्रेसिव ना हो, उतना पेनफुल ना हो, उतना इम्पैक्टफुल ना हो। अगर मैं एक टीचर होके, मुझे तो लैंग्वेज आती है ना, अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि मुझे कैसा लगा जब मुझे पता लगा मेरी लैंग्वेज का आज लास्ट डे है, तो शायद सबको लगेगा टीचर ही तो है, कोई बात नहीं, क्या। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, अ लर्नर्स पर्सपेक्टिव, who is not given the chance to learn his language further, then we are able to relate, we are able to connect. Yes, we are able to understand the pain, the agony of France, the other people, the villagers, that how would they have been feeling. अब क्या है मेजर थीम, आप बताओ? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और पेट्रियोटिज्म। I think others can also raise hand. We can all make an opinion. एक्सक्यूज मी मैम, Yes बच्चा। पैट्रियोटिज्म एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या होता है। पेट्रियोटिज्म इज देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म इज देशभक्ति। तो थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है आपके अकॉर्डिंग? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और पेट्रियोटिज्म। यस चिरांश। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। Yes, linguistic chauvinism, but at the same time, people are also showing their patriotism, that how important it is to them, though they are regretful, but at the same time they are also feeling. तो हम इसका आंसर या तो एक साइड पे देंगे कि linguistic chauvinism कैसे है। Yes चिरांश, you speak first. मैम वो पैट्रियोटिज्म कैसे हो सकते हैं? अभी वही बता रही हूँ मैं, दोनों व्यू पॉइंट्स पे बात कर रही हूँ। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, उन पे लैंग्वेज इम्पोज की गई, फ्रेंच टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, लोगों को अनाउंस कर दिया गया कि आज आपका लास्ट डे है। यस, आज आपका लास्ट डे है जो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो। यस, लेकिन पेट्रियोटिज्म कैसे है? द पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट थी। एम हैमल ने जो बोर्ड पे लिखा वीवा ला फ्रांस, क्या है ये? उसके पेट्रियोटिज्म का सबूत है। देयर वर सो मेनी विलेजर्स टू सिट एट द एंड ऑफ क्लास। जो बेंचेस जनरली खाली रहते थे, वो बेंचेस आज ऑक्यूपाइड थे, उस पे विलेजर्स बैठे हुए थे बैक बेंचेस की तरह, एंड दे वर ऑल लिसनिंग टू एम हैमल केयरफुली। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फ्रेंच टीचर और वो जा रहा है, दे वर गोइंग टू मिस देयर लैंग्वेज। तो ये उनका पेट्रियोटिज्म ही तो है, उनकी देशभक्ति तो है, उनका ये दुख जो है, जो उनका पछतावा है, वो इसीलिए तो है कि वो फ्रांस के होके भी अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। इज इट रिलेटेबल नाउ चिरांश? यस मैम। ओके, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैम प्रोटैगनिस्ट कौन होता था? प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर, जिसको आप हीरो कहते हो। मोहित। मैम फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस तो है ही, क्योंकि फ्रांस ही नरेट कर रहा है, फ्रांस ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है। यस चिरांश। मैम एम हैमल। एम हैमल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि एम हैमल के एटीट्यूड को लेके ही सारी स्टोरी, बट फ्रांस इज द फर्स्ट पर्सन नरेटर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट वो है। लेकिन जो ये फील करते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट एम हैमल है, देन वी कैन से कि एम हैमल was the one who was teaching French language and he was leaving. That's why everyone was sad. चिरांश, मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रांस या एम हैमल? जो भी लिखोगे उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए बस तुम्हें। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होता है। वैसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रांस। यस, बिकॉज हिज पर्सपेक्टिव, हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज पेन इज इलैबोरेटेड अपॉन, राइट? यस मैम। अगर आप एम हैमल को भी ऐड करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेन प्रोटैगनिस्ट है, एम हैमल भी प्रोटैगनिस्ट है, बिकॉज not only France pain is talked about, but also M Hamel's
tragedy. M. Hamel's worries are also talked about. Yes. So on this note, अब मुझे कौन बताने वाला है कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? What did we learn from this chapter? Raise your hand. अब हम सब तो रिलेट कर सकते हैं मुझे लगता है. चिरांश और मोहित, बस यश, अक्षत और हर्षित कुछ नहीं बोलेंगे आज. यस चिरांश, आप बोलो पहले. That we should love our mother tongue and we should respect it. Okay, very good. We should love our mother tongue. We should respect it. Mohit. Ma'am, we should always give priority to our mother tongue instead of other languages. Yes, we should give priority to our mother tongue. Yash. यश, आपका ओपिनियन? यश? Yes, ma'am. यस बेटा, आपका भी कोई ओपिनियन होगा. आपको क्या लगा इस चैप्टर से? आपने क्या लिया या कुछ नहीं लिया? अक्षत? अक्षत? हर्षित? हर्षित? We should. यस हर्षित. हर्षित नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, ना अक्षत, ना यश, ना हर्षित. This chapter is not only telling us to give our mother tongue a priority, but also to do the right thing at the right time. Otherwise, we are going to have regrets with us. अगर हमने सही चीज को सही टाइम पे नहीं किया तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा. अगर इन लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को टाइम से याद किया होता, जब लेसन चल रहे थे ढंग से अटेंड किया होता, तो आपको लगता है इनमें से कोई सफर करता? इनमें से किसी को भी ये रिग्रेट होता? No, कि हमने अपनी लैंग्वेज को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा? राइट? So the thing is talking about the same issue, that a stitch in time saves 9. Right action done at the right time saves you from any regretful outcomes. Yes? यश, आपने चैट बॉक्स में दोबारा पेस्ट किया था बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ मैंने सेव कर लिया. आपने तो कर लिया बेटा, चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर दो, बाकी भी नोट कर लेंगे. और मुझे एक अपना डिटेल्स भेज देना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो दैट आई कैन सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस की ब्रॉडकास्ट में या कभी भी कोई चेंजेस हैं, कुछ है. एंड इफ यू पीपल फील की कोई डाउट है तो एटलीस्ट डिस्कस कर सके हम लोग. राइट? चलो अब मैं ही भेज देती, नो प्रॉब्लम. मोहित, अक्षत, बेटा आई एम सेंडिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू चैट बॉक्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सेविंग इट and sending me your contact number so that I can save it for future reference for making any broadcast or anything that I need to share with you. I hope you have got it. Akshat, Mohit, yes, Harshit चले गए हैं, शायद नेटवर्क एरर है. ओके, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. है डाउट? रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है. अक्षत, मोहित, यश है तो अभी पूछ लो, फिर मेरी टर्न है, फिर कोई डाउट नहीं एंटरटेन करूंगी. जल्दी, अभी टेस्ट भी होगा, तब मुझे मत कहना मैम ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया. ठीक है? Excuse me, ma'am. यस बच्चा. यस मैम आप चैप्टर्स के नोट सेंड कर देना प्लीज. अब बेटा नोट्स मैं अभी सेंड करूंगी. एक्चुअली माय लैपटॉप वाज नॉट वर्किंग इनिशियली, तो आप समझ लो इस वीकेंड तक आते आते आपके पास आपके नोट्स पहुंच जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली थ्रू द राइट चैनल. ठीक है? ओके मैम. ओके बच्चा, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड समथिंग related to the chapter through today's class. Yes, ma'am. Okay. Akshat, thank you so much for sending that thing to me. I'm going to note it down. चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और जिसको मैं कहूंगी you people are going to answer. ठीक है यश जी?
यश ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. यस, चलो. चलो पहले सिंपल स्टार्ट करते हैं. Why do you think France was being afraid of scolded? France was afraid of being scolded. Akshat. Akshat. Yes, ma'am. Yes. Why France was Ma'am, afraid? because Hmm. ma'am, because he is late in the class. He was late in the class. ठीक है, एक रीजन. दूसरा एक और रीजन था. He had not learnt the lesson on participles. आज participles के बारे में सर ने पूछना था और उसने कुछ भी याद नहीं किया था. That's why he was worried that he would be scolded. Yes, Chiransh. मैम पार्टिसिपल्स पे से होमवर्क मिला था फिर उसे लर्न करके आना था. लर्न करके आना था उसे. आज की क्लास में ओरल वो था, कॉन्सेप्ट पूछना था. ओके मैम. He had to learn the lesson on participles. ओके मैम. Right? Now, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. Who was Vatker? What did he ask France and why? Vatker कौन था? उसने फ्रांस से क्या कहा और क्यों? यश. Yes, ma'am. यस. यश, फ्रांस से वाटकर ने क्या कहा और क्यों कहा? यश. यश, आर यू देयर? Yes, ma'am. अब बता भी दो बेटा, इतना शर्माने की कौन सी बात है? बताओ. मैम नहीं पता. नहीं पता. चलो मैं ही बता देती हूँ. वॉटकर was a blacksmith. Yes, and when he saw France that he was rushing. Yes, when he saw that he was rushing, at that time he asked France कि इतनी क्या जल्दी है? Why are you in such a hurry? There is a lot of time. Yes. So on this note, Vodka tried to relax France. Thank you, Mohit, for providing your contact number. I hope you people have noted down mine also, and you are not going to give a thing कि ये surprise के किसका number, right? चलो अच्छा Ma'am, आगे. Yes, Mohit. repeat your. Ma'am, can you please repeat your number, ma'am? Actually, Number? I'm not able अच्छा, to. 8376 8376 नोट डाउन कर लिया. Yes. 838300. Yes, done. Okay. Now, Yes, ma'am, done. okay, thank you. So now next question. What was the unusual scene when Franz entered the school? What did he find unusual? Yes, Mohit. Ma'am, when he used to go on the street, ma'am, the sounds of the children talking and ma'am, the usual confusion, the sound of the ruler, they were not coming, and ma'am, the bulletin board, the many people are standing near the bulletin board, and ma'am, the teacher is wearing his green coat, and ma'am, green coat and shirt which which he used to wear on the special occasions like prize distribution and ma'am Yes, some inspection occasions days. day, and Yes, ma'am, very good. and Mohit, ma'am, your the answer was pretty correct. The only thing is that you talked about the bulletin board. Please don't include that because we are talking about the school scene. School scene से पहले था bulletin board. जो टाउन हॉल में bulletin board लगा हुआ था, वहां पे था वो bulletin board. जब वो स्कूल में एंटर किया, he did not see the hustle bustle, children chirping or talking, the rulers flapping on the table. Nothing was observed by him. Not only this, he noticed that the teacher
was wearing his best clothes that he generally used to wear on prize distribution days or inspection days. So he was really surprised. Yes, and boys, there is a humble request from my side that जो आज हमने डिस्कस किया, अगर आप लोग उसे छोड़ दोगे, लिंगर ऑन कर दोगे, तो आप लोग भूल जाओगे. मेक इट अ पॉइंट कि जो आज हमने सारा कुछ डिस्कस किया, आप अपनी एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे ना एक बार, आई नो द चैप्टर इज लॉन्ग और कई बार बोरिंग भी हो जाता है, बट स्पेयर आउट 15 to 20 मिनट्स. मुझे लगता है हम सबकी राइटिंग वो रीडिंग स्पीड इतनी तो है कि हम 20 मिनट्स स्पेयर आउट करेंगे तो हम चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लेंगे. यस, इज इट Yes, पॉसिबल? ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. और यश की तो आज छुट्टी तब होगी जब यश मुझे आंसर कर देगा. यस, अच्छा, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? यश, यश, यश कहेगा ट्रायल क्लास में मैम ने जान ले ली है, मेरी पीछे पड़ी हुई है. चलो अच्छा ठीक है, अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई. यस, मोहित, अक्षत, कभी ट्राई भी कर लो बेटा, मुझे भी लगे कुछ मैंने बताया तो कुछ समझ आया. Ma'am, the warm weather. हम्म, Ma'am, the warm weather, the chirping sound of the birds, and ma'am, the sound of the German soldiers doing their parade. yes, German soldiers नहीं, Prussian soldiers. Rest of it was fine. The Prussian soldiers marching, the chirping of the birds, and the warm, pleasant weather. These all restrained France from going to school. और इनहेरेंट रीजन भी क्या था कि उसने पार्टिसिपल्स पे याद नहीं किया था, ऊपर से वेदर बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अट्रैक्टिव था. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि आज स्कूल ना जाके वहीं जाया जाए, घूमा जाए, स्कूल बंक कर दिया जाए. यस, राइट. तो बेटा अब 4:59 Yes, हो गए. ma'am. तुम में से किस किसने गौरव सर की क्लास लेनी है 5 o'clock वाली? आज है गौरव सर की क्लास? Yes, ma'am. चलो 5 o'clock शायद उन्हीं की क्लास है ना. Yes, ma'am. So beta, please go through the NCERT book, try out the questions given at the end of the chapter, so that you people are able to relate to it. जो आज क्लास में सीखा एटलीस्ट अगर वो भी समझ आएगा तो मुझे लगता है कि हम लोग फिजिबल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि जब भी नोट्स हमें मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का असाइनमेंट जब भी मिलेगा, we are going to solve it out in a good manner. Yes. So on this Yes, note, ma'am. thank you so much. You can start leaving. Thank you, ma'am. Thank you so much. आप हो? यश,